मैं कुछ भी नहीं करता था, मतलब आई यूज्ड टू फ्लाई काइट्स ऑल द टाइम एंड यही इंटरेस्ट था मेरा. कभी क्रिकेट खेल लिया है, पतंग उड़ा ली. आई थिंक ऑनेस्टी इज द बेस्ट थिंग वन कैन डू. कुछ ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, जो सही है बोल दो. तो IIT छोड़ दिया. निकाल के मैथ्स निकला कि 7 लाख रुपए महीने के हिसाब से रेवेन्यू हो सकती है. तो जो वो 7 लाख महीने का हमने सोचा था, वो 7 करोड़ क्रॉस कर गया है. और मेरी रात को इतनी फट गई, नींद नहीं आई मेरे को, भूत प्रेतों में डर लग गया. इनको तो बोल दो कि अब तो बहुत बुरा टाइम है, बस हाथ जोड़ के भगवान का नाम ले और जिंदगी काट ले. व्हाट डू यू मीन? और हमें पता है कि इफ वी क्रिएट दैट वैल्यू इन द कस्टमर्स माइंड, देन ही कैन नॉट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम कमिंग बैक टू अस. ही कैन नॉट. वो कर ही सकता है. एंड दैट कस्टमर टोल्ड मी, मेरे को बताओ आप कहाँ पे हो. मैंने कहा मैं नोएडा में हूँ. तो मैं नोएडा आता हूँ. सो वो ही वाज समवेयर इन आई थिंक कर्नाटका. ही सेड मैं नोएडा आता हूँ, मेरे को बस हिना जी के पैर छूने. हाय, welcome to the Crux podcast. My name is Naman and today we talk to Puneet Gupta, the CEO of AstroTalk, the biggest astrology platform in India, which makes around 7 crores per month in its 3rd year. It's only starting. Puneet is a simple guy from Bathinda, जिसको पतंग उड़ाना बहुत पसंद है. Somebody who got ridiculed for their English in college and persevered through multiple failed startups. But with his simple funda of providing value and sort of an obsession with customer service, Puneet has built a uniquely Indian platform business of providing astrology services. He's so humble, so straightforward, but has the most amazing and beautiful stories. I hope you listen to them, enjoy them, and learn from them. आपको पता है क्या करना है अगर आपको पुनीत की कहानी पसंद आए. Like the video, subscribe to the podcast. Enjoy the conversation. Puneet, welcome to the podcast. Thanks Naman. Thank you so much for taking time. And आपको पता, I don't know आपको मैंने बताया नहीं बताया, but AstroTalk was the business. मतलब एक प्रोटोटाइप बिजनेस जब हम सोच रहे थे ना कि ये पॉडकास्ट करनी क्यों है एंड हमें इंडियन बिजनेसेस को लाना है और किस टाइप के इंडियन बिजनेसेस को लाना है. तो आई वाज डिस्कसिंग विद अ फ्रेंड हु गेव मी, मतलब उसके साथ फाइनल आइडिया डिस्कस हुआ एंड AstroTalk वाज द बिजनेस दैट वी वर लाइक, इस टाइप के बिजनेसेस व्हिच कुड पॉसिबली इवन ओनली हैपन इन इंडिया. एंड वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे, बट उससे पहले आपका एक इंट्रोडक्शन सा हो जाए कि हु इज मिस्टर पुनीत गुप्ता एंड ये AstroTalk आया कहाँ से, मतलब व्हाट लेड टू AstroTalk. ठीक है. So I come from Bathinda, which is a small town in Punjab, and I belong to a middle class family. And तो मेरा बचपन ऐसा था कि my paternal family is into small businesses and they don't believe in education much. तो कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं फेल है, ऐसे हैं सब लोग. And on the other side, like my maternal family is like everyone is very well educated and they are into government jobs or any other services, So when I was born, like my parents were having a very different opinion. My mother wanted me to study well, and she actually fought with everyone at home that I should study from the best school in Bathinda. And my father and my grandparents, they would say कि नहीं क्यों भेजना है इतने महंगे स्कूल में, what's the point, कुछ नहीं होता पढ़ाई से. So my mom fought, had an argument with all of them, but ठीक है, तो डाल दिया उन्होंने सब जैसे स्कूल में. And but था तो वही ना, मैं भी पैटर्नल साइड का हूँ, तो I would not study at all. So I was very bad at studying, and I would score at, so 40% was the passing marks, and I would score around 40, 45, 50 marks. वो भी ऐसे होता था कि टीचर ने दे दिया, चलो पास कर देते हैं बच्चे को. So that's how I was in school, but I was good at mathematics. So maths में मेरा interest था, तो उसमें I would score 90 plus. Otherwise, in all the other subjects, it would be 40, 45 like that. And my parents, they were very disappointed in me. My mother, obviously, because I was not studying. My father was also very disappointed because he wanted me to, sit at his shop and learn how to sell stuff. So he is running a handloom shop, and he always wanted me to, just learn how to sell things, because he kind of thought like I would do this after, I would run the shop after him and all that. So गद्दी पे बैठना है, तो I did none of them. So मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो कुछ नहीं इंटरेस्ट होता था. I would be, मैं कुछ भी नहीं करता था, मतलब I used to fly kites all the time.
एंड ये इंटरेस्ट था मेरा, कभी क्रिकेट खेल लिया है, पतंग उड़ा लिया. सो दैट इज हाउ आई वाज लिविंग. बट देन in the 8th standard I scored around overall 54%, and then I scored like 40 marks in 3 subjects. Like those teachers that just passed me. And that day my mom started crying, and she was saying she was sitting with her friend, and she was telling her that she did so much, and to send me to a very good school which was very expensive, and it was much more expensive as compared to our financial condition at home. And she was very disappointed, and she was crying. And that day I realized ki I am doing something wrong. So till that day it was like कि मेरी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है. अगर मेरे नंबर कम आ रहे हैं तो ये रिस्पॉन्सिबल है, मेरा क्या है, ये उनकी गलती है. तो नहीं पढ़ता हूँ तो भी उनकी गलती है, वो मोटिवेट कर दें, वो मेरे को सिखा दें. और मैं कुछ नहीं करता वो है. एंड आई वुड फाइट विद पीपल अराउंड आवर होम. तो उसमें भी फिर मैं उनको कहता था तुमने बचाना है मुझे. तो इट वॉज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑल. सो उस दिन मुझे लगा कि यार आई ऑल्सो नीड टू डू समथिंग बिकॉज आई कैन नॉट सी माई मॉम क्राइंग. एंड उसके बाद से आई स्टार्टेड स्टडिंग, एंड देन माई मॉम हैड टू नेवर टेल मी एनीथिंग. शी ऑल्सो मे बी हैड promised herself कि अब मैं बोलूंगी नहीं, या I don't know, maybe I started studying and उन्होंने कभी बोला नहीं. उसके बाद कभी बात नहीं हुई ऐसी. And my father was also now convinced कि चल ठीक है, पढ़ रहा है, थोड़ा बहुत जाने दो. तो that is where the first point came in my life where I realized that हाँ, खुद की लाइफ की जिम्मेदारी खुद की है. उससे पहले the life was very different. And उसके बाद मतलब then I did decent in school for 9th and 10th, and then +1 में सबने बोला कि इंजीनियरिंग करनी होती है. अगर तुम्हारे मैथ्स में नंबर अच्छे है तो तुम इंजीनियरिंग करते हो, मैथ्स अच्छे नहीं है तो तुम मेडिकल करते हो. मैंने कहा अच्छा, तो मैथ्स तो 90+ है, तो फिर क्या करना है, नॉन मेडिकल. ओके, सो दैट वाज द कंडीशन on which I chose non-medical over all the other streams. And so I was just given options to medical and non-medical. So medical किया है. हमारे यहाँ ये होता है कि पहले इंजीनियर बन जाओ, फिर फिगर आउट करते हो लाइफ में करना क्या है. हाँ, तो मेरे को तो पता ही कुछ नहीं था. मेरे को तो बस ऐसे 2 ऑप्शन दिए उन्होंने और बोला कि आर्ट्स अच्छी नहीं होती, आर्ट्स तब करते हैं जब तुम्हारे 60% से कम होते हैं. तो मैंने कहा मेरे तो अब 10th में आ भी रहे हैं, कुछ 72% आए थे शायद. मैंने कहा 8 से भी ऊपर आ गया. तो मैंने ऑप्शन दिए थे, उसमें से ऐसे हो गया. तो ठीक. तो फिर एक सीए का भी दिया शायद उन्होंने ऑप्शन, अकाउंटिंग में चले जाओ, सीए बन जाओ. तो मैंने कहा उसमें क्या होता है, मैथ्स अच्छा होना चाहिए, मैथ्स तो अच्छा है. तो फिर देन दे सेड कि सीए कोई नहीं अपने में, पता नहीं, तुम इंजीनियरिंग कर लो. मैंने कहा चलो. तो फिर वो आईआईटी में मतलब मेरा रैंक इतना अच्छा नहीं आया था, 2900 समथिंग आया था ऑल इंडिया रैंक. तो इतना अच्छा था कि कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ मिल जाए. फिर AIEEE में भी रैंक था ऑल इंडिया, तो वो भी ठीक था. तो अब क्या था, लेना है तो था कि IIT लेना है. तो किसी ने आके बता दिया कि अगर कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लेना तो जीवन खराब है, तो प्लेसमेंट नहीं होगा, आपका कुछ नहीं होगा, प्लेसमेंट ही नहीं होगा. मैंने कहा अच्छा, कोई और ब्रांच नहीं चलती, सिविल का कुछ नहीं है. आगे जाके जब 4 साल बाद ना सिर्फ कंप्यूटर साइंस बचेगा, IT ले लो, कंप्यूटर साइंस ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स उसके अलावा नहीं. तो मैंने कहा अच्छा, वो नहीं मिल रहा था IIT में. तो IIT छोड़ दिया. ठीक है, तो IIT छोड़ दिया. तो इतना फीडबैक भी नहीं लेना चाहिए लाइफ में. नहीं मतलब जिसने बता दिया, पता ही कुछ नहीं था ना, गांव के लोग, हम पता है नहीं कुछ, तो जैसे कोई बता रहा है हम सुन रहे हैं. एंड आई हैड नो एक्सपोजर टू लाइफ, तो घर से निकले ही नहीं कभी. एक्सपोजर इतना पतंग उड़ाने तक का था, उसके आगे था नहीं. तो किसी जो बता दिया मान लिया. अब गूगल करने का कुछ हमें तो पता नहीं था तब होता है या था या नहीं, पता नहीं, हमने तो नहीं किया. तो बस फिर था कि NSIT DC कहाँ जाना है, और फिर पैक में भी मिल रही थी, और वहां पे शॉर्ट था कि मिल जाएगी. NSIT वगैरह में मिल रहा था वैसे तो, बट फिर पैक का ऐसा था चंडीगढ़ में है, और चंडीगढ़ भी मैं था उस टाइम पे. आई थॉट की सही है, सही सिटी है, यहाँ पे नहीं है तो यहीं ले लेते हैं. तो आई एंडेड अप विद पैक. वहां पे सही था, 4 साल चिल मारी, क्रिकेट खेला जैसे कॉलेज में होता है. तो सर, तो आपकी लाइफ स्टोरी ऐसी है कि आप मतलब चिल करते थे, थोड़ा सा धक्का लगता था तो कहीं चले जाते थे. वहां से एस्ट्रोटॉक जैसी चीज बनाना, विच इज लाइक अगेन मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया बिजनेस है. अगर इंडिया में किसी को बिजनेस देखना है तो एस्ट्रोटॉक जैसा बिजनेस बनाना चाहिए. बट वो बात छोड़ते हैं. बट एनी स्टार्टअप
जिसमें जद्दोजहद करनी पड़ती है, वो ये बंदा ये काम कैसे करता है, क्या चेंज होता है? हाँ, तो मतलब ऐसी था कि वहां से थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ था कॉलेज में मेरे को, तो कि कुछ करना है, बिजनेस करना है, कुछ स्टार्ट करना है, तो आई वुड, क्योंकि वहां पे हुआ क्या था, एक ना वो थी, एक कॉन्फ्रेंस सी थी, कोई आया था ऑडिटोरियम में हमारे, एंड वो बता रहा था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तुम्हारी जो भी आइडिया वो करो। तो दैट्स हाउ यू नो आई स्टार्टेड गेटिंग सम आइडिया कि हाँ ऐसा कुछ मुझे भी करना चाहता हूँ, एंड मुझे थोड़ा सा फील आया उसके बारे में, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ करेंगे। तो देन आई वुड टॉक टू माई फ्रेंड्स कि ये करते हैं, वो करते हैं, एवरीवन वुड जस्ट यू नो टेल मी टू शट अप, क्योंकि वहां पे ट्रेंड ऐसे था कि अच्छी जॉब लो, एमबीए करो, एमएस करो, एंड देन गेट सेटल। तो देयर नो नथिंग लाइक नो स्टार्टअप और एनीथिंग, या जॉब के लिए भी लोग मना करते थे, जॉब भी नहीं करनी है, एमबीए एमएस करो, तो वैसा ट्रेंड था वहां पे। तो नो वन यू नो spoke to me about the ideas also. They were like a very different breed of people. And ऊपर से क्या हुआ था कि एक बार ऐसे ग्रुप में बैठे थे हम 15-20 लोग, तो कहते हैं भी तुम्हें कौन सी बंदी पसंद है बताओ। तो ऐसे सबसे तो मेरे से पूछे, मैं क्या नहीं कोई, तो कहते बतानी तो पड़ेगी। तो मैंने एक का नाम लिया, तो देन पर्सन सेड कि वो तो इंग्लिश में बात करती है, तेरे को तो अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, एंड एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग। ठीक है, तो so that gave me a lot of you know that I felt very sad कि ऐसे सब लोगों के पीछे मजाक उड़ा दिया just because of my English, and फिर उससे एक जुनून शुरू हो गया था कि अब इंग्लिश सीखनी है उस टाइम पे। that was around I think first or second year in college। तो फिर मैंने क्या किया, मैं पढ़ा कि इंग्लिश के लिए क्या पढ़ना होता है, तो रेड एंड मार्टिन पढ़नी होती है, वर्ड पार मेडिसी पढ़नी होती है, फिर होता है कि अखबार पढ़ने होते हैं, द हिंदू सबसे मुश्किल है, चलो द हिंदू लगा लो, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, ईटी सारे लगवा लिए मैंने अपने रूम में। ठीक है कि अब तो रोज यही सारा दिन इंग्लिश पढ़ने में लगाना है, एंड मेरी सारी दीवारों पे ऐसे A4 साइज शीट लगी हुई थी, सब पे वोकैबुलरी के वर्ड लिखे हुए थे। सो आई डिड दैट फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स इन कॉलेज, कि अब ये लाइफ में दोबारा सदमा नहीं लगना चाहिए कि इंग्लिश पे कोई कुछ कह दे। पुनीत, पता है सबके साथ होता है ऐसा, सबके साथ कभी ना कभी कोई ना कोई सदमा लगा होता है कि उनकी बेइज्जती हुई होती है और कुछ होता है, बट कोई बताता नहीं है। तो व्हाई आर यू सो कैंडिड, हाउ आर यू सो कैंडिड? एंड आपने एक और स्टोरी बताई हुई है अपनी, आई थिंक गर्लफ्रेंड की, इन अनदर इंटरव्यू, इफ यू कुड जस्ट टेल दैट एज वेल, व्हिच यू सेड कि उससे मेरे को बहुत ज्यादा लगा पैसे कमाने का, एंड आई वाज जस्ट शॉक्ड। आई वाज लाइक, हुआ मेरे साथ भी कुछ सिमिलर है, but I would never be able to share that in a public forum, especially if I was doing such a big startup and doing so well. I think honesty is the best thing one can do. कुछ ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, जो सही है बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब I don't think too much, and I don't lie to anyone कि मेरे को कुछ सोचना पड़े। I just believe कि honesty से बोलते जाओ, people would trust you more than anyone else. So that is my policy. तो मैं business में भी, काम में भी, even with a teammate, I'm very honest and upfront. So now I see that people trust me a lot more than they trust anyone else, just because I'm very honest to them. And उन लोगों के साथ जिनके साथ अच्छी बनती भी नहीं थी, वो चाहे मेरे को कुछ भी कहते टाइम पे, तू ऐसे बोलता है, but they also trust me. So वो एक बहुत बड़ी चीज होती है ना। So when I need someone's help or support, सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? So they also trust you, then there is nothing like that, right? तो मेरे को कभी किसी की हेल्प चाहिए हो तो मतलब it is really easy to just ping people and ask for it. जैसे अभी होता है ना कि आपने किसी दोस्त को फोन करके बोला यार और भी हालचाल पूछा 10 मिनट, ठीक है, फालतू बातें करके फिर काम पे आते हो। मैं सीधा काम की बात करता हूँ, and not that also कि हाँ ये ऐसा ही है, मतलब मेरे को कोई मैसेज करके 10 बातें घुमा के करता है, मैं उसे कहता काम की बात बता ना यार, सीधा खत्म करते हैं। तो करते नहीं है सर ऐसे लोग, दैट इज अमेजिंग। बट अच्छा चलो अब एस्ट्रोटॉक पे पहुंचते हैं। एंड एस्ट्रोटॉक कहाँ से आया, मतलब व्हाट लेड टू एस्ट्रोटॉक? कि बिकॉज इट्स अ प्रॉब्लम व्हिच इज इन योर फेस। एस्ट्रोलॉजी इंडिया में सालों साल से है, सबको पता है। आईटी भी सालों साल से है, सबको पता है। इट्स लाइक द मार्केट एग्जिस्ट्स, यू जस्ट सेड कि बॉस ये फ्रैगमेंटेड बिजनेस है, इसको मैं एक प्लेटफॉर्म पे लाके अगर कर दूंगा तो ऑफ कोर्स बिजनेस वर्क्स। बट ये प्राइमरी इंसाइट ये आपको दिमाग में कहां से आया कि ऐसा कुछ करें? Are you enjoying the video? If you are, like it. Follow the channel. तो कॉलेज के बाद आई ज्वाइन नमूरा,
it's an investment bank in Mumbai. So I joined there and worked there for 2.5 years, and then I quit to do something of my own. Okay, so I went back to India and I started working on a couple of things, and I was not well planned, and things were not well planned, and कुछ ऐसे structure था नहीं कि क्या करना है exactly. So I tried couple of things in desperation and nothing worked out. और जितने पैसे save किए थे सारे उड़ गए, and फिर I lived through a very difficult phase of my life, and then I came back to Mumbai. बहुत मुश्किल थी वहाँ पे, and then finally I got a job in another investment bank. So there again I worked for around 8-9 months. जब थोड़ी saving हो गई, तो the funda of joining that bank was to again save a few I save some money and then start up again. So 8-9 महीने के बाद saving हो गया, then I plan to start again with another friend he was from IIT Delhi. He was my school friend, and we thought like we'll get together and start something. तो हमारा plan बना था कि एक product करेंगे, जो कि हमने start किया था product, तो वो चला नहीं था. फिर हमारा सामने था कि IT कंपनी में start कर लेंगे. चलो IT business and we'll start providing services for creating apps and website. ठीक है, तो वो फंडा था, एंड तो बिफोर स्टार्टिंग दैट आई हैड टू पुट डाउन माय पेपर्स. मैंने बड़े एंथू से रेजिग्नेशन लेटर लिख दी, और इस बार तो लिखने के लिए टेम्पलेट चाहिए था, सारा याद था पिछले बार, टाइप कर दिया. और अब सबमिट करने से पहले ना यार फट गई एक बार कि यार पिछली बार ये हुआ था, एंड ऑल दोस थॉट्स, डिप्रेसिंग थॉट्स, दे स्टार्टेड गोइंग इन माय हेड, एंड मेरे से क्लिक ही नहीं हो रहा सबमिट बटन पे. आई इतना सही एंथू से टाइप की मैंने, अब सबमिट नहीं हो रहा, एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट द रेजिग्नेशन लेटर, एंड तो इधर से एक कोलीग आई मेरे पास, एंड शी सेड कि ऐसा गंदा सा बूथा बना रखा, क्या हो गया तेरे को. तो आई टोल्ड अबाउट माय पास्ट स्टोरी, एंड आई वांटेड टू रिजाइन, एंड आई वाज unable to do that, and she said कि she practices astrology and she can guide me in taking that decision whether I should resign or not. तो पहले तो मैंने उसको साथ किया, तो बोला यहाँ पता है कहाँ बैठे हो आप, इन्वेस्टमेंट बैंक में बैठे हो, पढ़ लिख के यहाँ पे आप टेक्निकल काम कर रहे हो, बातें आपकी गवारों वाली, क्या एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हो, मेरे को नहीं करना है सब. फिर वो सीनियर थी मेरी, वो कहती कि लेट मी टेल यू व्हाट इट इज, एंड उसके बाद तेरी मर्जी है, तूने सुनना है सुन, नहीं तो किसी की सुनता नहीं है मत सुन. तो मैंने कहा ठीक है चलो बताओ, देखते हैं, आपको टेस्ट करते हैं. तो देन शी ओपन चार्ट एंड said कि हाँ you can resign, your next 2 years are promising and you will do something in the field of IT. तो मैंने कहा चलो ठीक है. तो आपने कहा 2 साल का क्या मतलब है? You said 2 years are promising, and then she said कि she feels that my partner would resign after 2 years, and that would be the reason of startup going down. And तो मैंने कहा फिर क्या होगा, फिर मेरे साथ फिर से ऐसा तो नहीं होगा जैसे अभी पहले हो जाता था, मेरी फटी होती उसी बात से. एंड देन कि नहीं, the time would be tough, so you'll take 1 or maybe 1.5, start something again, or maybe build that business. It will take some time, so there would be a time wherein you would not be doing that well, and it could be bad, ऐसे करके उसने बोला, but please don't worry, उसके बाद बहुत अच्छा होगा. तो मैंने कहा ठीक है, जैसे भी था. तो फिर मैंने रिजाइन कर दिया. सो द रेजिग्नेशन वाला ऐसा नहीं था कि हाँ उसने कहा ऐसे कर दिया, सो मेरे को ट्रस्ट नहीं था उसकी बात पे, बट हाँ आई जस्ट गॉट एन एश्योरेंस फ्रॉम समवन कि यू कैन रिजाइन. सो आई जस्ट वांटेड टू हियर इट फ्रॉम समवन दैट आई कैन रिजाइन, एंड आई रिजाइन, एंड केम बैक टू नोएडा, एंड वी स्टार्टेड एन IT company, and as she said, it did really well, and we scaled to a team of 45, and we were doing a revenue of around $500,000 annually, and that was the first time I started something successfully, and $500,000 was a huge amount. I was very happy that I was running a team of 45 and everything. So 1.5 साल बाद my partner came to me and he said मजा नहीं आ रहा यार, मजा नहीं आ रहा. So he said कि मजा नहीं आ रहा, मुझे नहीं करना ये, let's shut it down. What do you mean? We are doing it because of $500,000, and you're going to get that kind of salary anyway. But you want to shut. So then you do it, I don't want to do it. मैंने कहा tell me the reason, no, why suddenly you're saying all this. He said we came together to start a product, and that didn't work. Then we started this IT company, and now we're so much trapped in the kind of money we are making here, we are not even trying to do a product.
And I don't think we can go. And so I told him कि चलो ऐसे करते हैं, let me run this company and you start a company inside the umbrella of this code Yeti and you do products. Okay? And everything will be financed by this company only, and we are both running both the companies, but you take care of that initiative and I'll take care of this. And then he said, हाँ ठीक है चलेगा. And फिर he started a few things and 3-4 महीने हो गए, we couldn't find a single customer for that. This business was doing well and फिर उसका हो गया यार मेरे से नहीं हो रहा, अब I'll rather do a job, I don't want to do all this, and he left. तो उसने छोड़ दिया. तो मेरे बैंग ऑन टाइम हो गए. तो हाँ बैंग ऑन टाइम हो गया. और उसके उस टाइम पे जब वो छोड़ रहा था तो मुझे इतना फील भी नहीं हुआ, क्योंकि आई वाज रनिंग दिस कंपनी फॉर द लास्ट 6 मंथ्स अलोन एंड आई थॉट कि चला जाएगा तो क्या है, चल तो रही है. वो नहीं चल रहा था, वहां तो वैसे पैसे बर्न हो रहे थे जाने में. तो बट एज सून एज ही लेफ्ट आई रियलाइज्ड कि जो प्रोजेक्ट हम कर रहे थे वो डिलीवर हो रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ हिम. क्योंकि आगे लास्ट में हेल्प करके जो चीजें फंसती थी वो पूछते ही बताया था ऐसे करो खत्म. सो नाउ दैट गॉडफादर ऑफ टेक्नोलॉजी इज गॉन, सो ही वाज वेरी स्ट्रांग टेक्निकली, राइट. सो वो चला गया, हमारे प्रोजेक्ट इन डिलीवर हो रहे, सारे अटक गए. अब वो निकलेंगे तो अगले प्रोजेक्ट्स आएंगे, वो निकलेंगे तो वो क्लाइंट आगे का प्रोजेक्ट देगा, सारा कुछ रुक गया एकदम से. And within 1 month, I realized that this company could not survive for more than 4-5 months without finding someone very good technologically. तो अब IT मतलब सर्विस कंपनी में ऐसे इतना बड़ा को-फाउंडर या कोई इतना तगड़ा बंदा लाना इतना इजी था नहीं. और मेरी भी उस टाइम पे एंथ बहुत कम हो गया था. So that emotional support which was there, no, so it went away with him. And I also started feeling a lot of, you know, that negative energy that he also left. Why am I running this? It is not even doing well. And I started getting those thoughts कि यार ये नहीं करना अब. तो फिर मेरे को याद आया ऐसी सैडनेस में बैठे बैठे कि यार मेरे को उस बंदी ने ऐसे बताया. एंड मैंने देखा उसका नंबर था, मैंने कॉल कर दिया उसको. सो आई डिड स्पीक टू हर फॉर 2 years. फिर मैंने कहा कि अब ऐसी कोई ज्यादा हाई हेलो तो नहीं. मैंने कहा हेलो, मैं पुनीत बोल रहा हूँ, आपसे ऐसे मेरे को बताया था और मेरा जैसे आपने कहा था उसने छोड़ दिया 2 साल. She was extremely happy to know her prediction came true, but because I was talking so sadly कि मेरा पार्टनर चला गया, अच्छा नहीं हुआ, and I could feel that excitement in the voice, but वो sad तरीके से बोल रही है. तो मैंने कहा ठीक है. तो कहती क्यों फोन किया, तेरे को और prediction चाहिए? So I had no agenda to call her. I just called her up कि उसका ऐसे उसने बताया वो सही हो गया. उस टाइम तक इधर कोई एजेंडा नहीं था. तो उस कॉल में मैंने उसे बोला कि यार आई एम स्ट्रगलिंग टू रन दिस कंपनी नाउ एंड आई थिंक आई शुड स्टार्ट समथिंग इन एस्ट्रोलॉजी बिकॉज नाउ द काइंड ऑफ प्रेडिक्शन डन आई बिलीव कि दिस कैन बी ह्यूज. तो उसने पूछा कि तूने कोई कंपनी देखी है इसकी? मैंने कुछ नहीं देखा, तभी बता रहा हूँ. तो मैंने कहा वो सब छोड़ो, मतलब आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निकली नाउ, आई हैव अ टीम, आई कैन बिल्ड एन ऐप इन नो टाइम, यू टेल मी इफ यू कैन वर्क और नॉट. तो वो बोली कि आई एम ऑन मैटरनिटी लीव एनीवेज, आई कैन स्पेंड अ फ्यू मंथ्स एंड यू विल हैव टू फाइंड समवन बिकॉज आई कांट वर्क आफ्टर यू नो एट द टाइम ऑफ माय डिलीवरी. तो मैंने कहा ठीक है, आप अभी स्टार्ट करते हैं एंड बाय दैट टाइम आई विल हैव मोर एस्ट्रोलॉजर्स. कहते ठीक है, बाकी गिव मी अ फ्यू डेज, लेट मी जस्ट कंफर्म विद यू, तब तक तू ऐप बना ले, कोई और ले ले. तो मैंने कहा चलो ठीक है. So then I spent the next 2 weeks building an MVP. तो मैंने ज्यादा दिमाग में नहीं लगा ऐसी ऐप होनी चाहिए वैसी ऐप होनी चाहिए. मैंने सोचा बस एक सीधा है एस्ट्रोलॉजर है, बुक करो, पैसे दो और जाके बात करो, बस. सो सिंपल. उसमें ये भी कॉल हमारे सिस्टम से जाएगी, नंबर देंगे, बात कर लो. Very simple product just because I want to test it. And I started believing in astrology and I thought if she could tell something like this, it could add a lot of value to people. But I didn't know कि इसकी मार्केट साइज क्या है. I just had कि ये प्रोडक्ट की वैल्यू है और वैल्यू सबसे बड़ी चीज, बट मेरे को मार्केट कैप नहीं पता था उसका. ठीक है. तो मैंने जितनी देर तक ऐप कर रही थी, आई डिड माई रिसर्च टू यू नो फाइंड ए मार्केट कैप फॉर दिस. तो मैंने पूरा अपना मैथ्स लगाया और देखा कितनी कंपनीज हैं, कितना कमा रही हैं, उनकी मैंने रेवेन्यू शीट निकाली है. तो निकाल के मैथ्स निकला कि 7 लाख रुपए महीने के हिसाब से रेवेन्यू हो सकती है मैक्सिमम. आई डोंट नो कौन सी कैलकुलेशन करी मैंने, तो वो निकला 7 लाख
महीने से ज्यादा ऊपर वी कैन नॉट डू। हाँ ठीक है, तो मैंने यहाँ से निकाला, इतनी कॉस्ट बनाने में, इतनी कॉस्ट डेवलपर की है, करके लॉस में है, लॉस में तो ये तो नहीं चलेगा काम। तो बड़ा मेरे को एकदम से धक्का लगा। बट देन जब इतने में ऐप लाइव हो गई थी, और ऐप लाइव होने के 3-4 दिन बाद मेरे को एक डेटा निकला वहां से जो कि बहुत अलग था उससे। सो द डेटा वाज व्हिच वाज समथिंग व्हिच आई वुड नेवर बिलीव और इवन थिंक। तो उसमें था क्या, वन पर्सन हु इज टॉकिंग टू हर, दैट पर्सन इज टॉकिंग टू हर अगेन एंड अगेन, he is booking a session again, he is booking the session on the same day again, on the next day, on then on the next day, and this is very common in all the customers. मैंने कहा इतनी बार कौन बात करेगा इस तरह से, मैंने तो उससे एक बार बात करी थी तब। तो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, सर मैं आई डू नॉट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। जो आपने बोला ना अपने कुलीग को कि आप पढ़े लिखे हो, ये सब सच, मेरा सेम चीज है। बट कल मैंने जो है बिफोर टॉकिंग टू यू आई वांटेड टू चेक द ऐप कि भाई ऐप करता क्या है, एंड आई डाउनलोडेड द ऐप एंड इट्स एडिक्टिव। इट इज एडिक्टिव कि चैट मतलब तुम चाहे तुमको पता है कि चाहे तुम्हें लगे कि भाई ये सच नहीं बोल रहे या ये एक्यूरेट नहीं बोल रहे, जस्ट टॉकिंग टू समबडी एंड देम टेलिंग यू कि भाई सब ठीक हो जाएगा, और या तुम्हारी लाइफ में इतना अच्छा कुछ हो सकता है, या 2-3 चीजें तो काफी एक्यूरेट हो गई। सो सिंस वी आर बीइंग ऑनेस्ट, आई एम गेटिंग मैरिड, ओके, एंड जिस डेट पे आई एम गेटिंग मैरिड उसके अगले डेट द एस्ट्रोलॉजर सेड मेरी लव लाइफ अच्छी हो जाएगी। आई वाज शॉक्ड, आई वाज लाइक इसको कहां से, एंड मेरे को जानना भी था कि आप लोग क्या मैसेजेस पढ़ रहे हो क्या साइड में ऐप में, फेसबुक बन गया हो क्या, अपना डेटा निकालते हो? बिकॉज आई वाज शॉक्ड। बट आई वांटेड टू नो कि ये जो 7 लाख वाला कैलकुलेशन है आपने कैसे किया, बिकॉज इसमें वो भी फंडा है ना कि मतलब जब पर्सनल कंप्यूटर्स आए थे तो आई थिंक Xerox ने बोला था या किसी कंपनी ने बोला था कि देयर इज अ मार्केट ऑफ 3 पर्सनल कंप्यूटर्स। तो क्लियरली दैट वाज नॉट ट्रू, एंड मे बी दैट वाज द रीजन ना, अभी तक कोई प्रोडक्ट ही नहीं है जो इतना अच्छा है मार्केट को, जो केटर कर रहा हो कि मार्केट उसको रिस्पॉन्ड करके बता तो पाए कि मेरा मार्केट साइज है क्या। वाज दैट द केस? या सो द थिंग वाज कि जितने लोग चला रहे थे ना कंपनी, वो सारे लाला माइंडसेट थे, सो नो वन हैज पुट एनीथिंग आउट। ठीक है, देयर वाज नथिंग मच इन द न्यूज़। एक कोई पहले एक स्टार्टअप था जिसकी फंडिंग हुई थी 2013-14 में, और तभी बंद भी हो गया था वो, और किसी ने फंड डाला उसमें, एंड ऑल द बिजनेसेस वर रनिंग इट, एंड उनका भी ऐसा था कि कुछ नहीं लिखा है, बस साइट चल रही है, एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, कमा रहे हैं, चल रहा है। And they were not doing much on marketing front also. They were not, writing anything over the internet, and there were no news about them. कुछ था ही नहीं ना यार, ऐसा लग रहा था फालतू की इंडस्ट्री सी है। बस जस्ट दैट कि मेरे को वो था कि एक वैल्यू मेरे को ऐड की उसने, तो वैल्यू बहुत बड़ी चीज होती है। If that has added some value to me, it can obviously add a lot of value to other people. तो बस उतना सा बिलीफ था, and I wanted to try it out. और डूब तो मैं रहा ही था, तो मैंने कहा चल के देखते हैं। तो फिर जब ये डेटा निकला ना कि पीपल आर टॉकिंग अगेन एंड अगेन, तो मेरे को इतना सरप्राइजिंग लगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कस्टमर को मैसेज किया, मैंने कहा आई एम द फाउंडर ऑफ दिस ऐप, एंड इफ यू डोंट माइंड कैन वी स्पीक ऑन कॉल। एंड वो कहते हैं हाँ श्योर। तो जितने कस्टमर ने सबको डाल दिया, एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम एग्री टू टॉक टू मी। मैंने उनसे फोन करके पूछा कि भैया आप इतना ज्यादा यूज कर रहे हो यार, क्यों कर रहे हो? तो ही सेड कि मैम से बात की थी, और मैम ने ये बताया हमें जो बिल्कुल सही निकला, और उन्होंने कुछ हमें गाइड किया करने के लिए। तो मुझे लगा कि मैं और चीज के बारे में पूछ, उस दिन मैंने अपनी इस चीज के बारे में पूछा, मैंने और चीज के बारे में पूछ लिया, एंड नाउ आई टोल्ड माय फ्रेंड्स, दे आल्सो वांट टू टॉक, सो आई वाज बुकिंग फॉर देम फ्रॉम माय ऐप ओनली, सो आई वाज नॉट टॉकिंग, मैंने उनके लिए भी किया। तो कहता मैंने भी बार बार किया। फिर मैंने दूसरे से बात की, सिमिलर स्टोरी, ठीक है। They all said that it added some value, and we felt very well after having that session, and we won't talk to her again. So then अब क्या था कि वो 7 लाख कुछ नहीं मैटर कर रहा था। Now I have seen कि product has immense potential. कि यार एक एस्ट्रोलॉजर में इतनी मचा दी, तो जब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर होंगे तो मचा देंगे ना यार, जबरदस्त। मतलब, and after 15 days of launch, we were at a stage
जहाँ पे हमको उसके स्लॉट्स बंद करने पड़ते थे, तो हमने स्लॉट्स में खोल रखे थे 10 से लेके 7 बजे तक। तो ऐसे नहीं था जैसे अभी है कि आपने कॉल मिलाया, बात कर ली, तो देवर लाइक हाफ एन आवर स्लॉट्स विच वर अवेलेबल फ्रॉम 10 to 7। ठीक है, वो सारे बुक हो जा रहे थे एंड नेक्स्ट 3-4 डेज की बुकिंग हो गई है। एंड तो फिर नहीं, आई थिंक हफ्ते तक की बुकिंग होगी, फिर उन्होंने बंद कर दिया कि नेक्स्ट 3 दिन से ज्यादा की बुकिंग अलाउ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एंड देन शी वाज लाइक कि मैं इतनी देर काम नहीं कर सकती यार, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, इतना काम करा रहे हो मेरे से। तो नाउ द प्रॉब्लम वाज कि डिमांड इतनी आ गई, सप्लाई नहीं है। ठीक है, एंड तो मैंने कहा ठीक है चलो आप जितना कर सकते हो आप करो, आई विल टॉक टू द कस्टमर। Oh, it was only her till then. कब तक was one colleague पे कब तक रहा था? I'm still in the first month of starting Astro Talk. So she was the only one. And फिर मैंने कस्टमर को बोला कि आपने बुक किया था सेशन, is it possible कि we can cancel it because she is not well to take the call right now. तो जब मैंने पहले उसको कहा कैन वी कैंसिल, तो वो गुस्सा हो गया। फिर मैंने कहा कि शी इज नॉट वेल टू टेक द कॉल। कहते अच्छा कोई बात नहीं, इफ शी इज नॉट वेल तो ठीक है। सो नाउ जस्ट सी द यू नो द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दे हैव फॉर हर एंड नथिंग फॉर मी ऑब्वियसली, बट उसके लिए इतनी रिस्पेक्ट थी। उसने ऐसे बोला ठीक है, हाँ जैसे वो कहते हैं आप कर लो उनके हिसाब से, आप बता दो। मैंने कहा ठीक है, वैसे कह रहे हैं, कहते हाँ जस्ट द बॉडी लैंग्वेज ना चाहिए। तो वहां से मेरे को पता लगा यार ये तो कुछ गजब ही हो गया। तो फिर एक मैं ऐसी एक से पूछ रहा था कि भाई तुमने पूछा क्या ऐसा। So then there was this lady and she told me this amazing story. मेरी फट गई थी वो सुन के। ठीक है कि साला ऐसा भी होता है। तो she told me कि ऐसे हमारा ना कहती I am married for I think 11-12 years or something, and our relationship was very good. Everything was perfect in our relationship, and we have a kid also and everything. So but from the last 2 years we fight for no reason and we can't even see each other's face. We are not thinking of divorce, but we cannot talk to each other. बात करते हैं एक दूसरे की शक्ल देख के लड़ पड़ते हैं। And so that was the reason I called Hina and we spoke to her and तो कहते हैं कि उन्होंने ज्यादा हमारी बात नहीं सुनी। एक क्वेश्चन पूछा कि आपने 2 साल पहले नए घर में शिफ्ट हुए थे, एंड द लेडी शी टोल्ड मी कि उसने बताया कि नहीं नए घर में नहीं शिफ्ट हुए थे, बट हमने इसी घर को रिकंस्ट्रक्ट करके 2 साल पहले इसका दोबारा से मुहूर्त हुआ था। कहती पहले तो मेरी इतनी देर करके सुन के फट गई, ऐसे बोल रहे हैं, मेरी फट गई मतलब एकदम से। लेकिन ये कुछ नहीं था। उसके बाद उसने बोला कि आपका जो बेडरूम है वो एक साइड से दबा हुआ है, एंड द लेडी सेड कि जब वो कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो एक साइड से नींव दब गई थी। तो वो कहती बस आपका सोल्यूशन यही है, उसको दोबारा ठीक करा दो। Are you kidding me? अब तुम ये देखो वो ठीक हो चाहे ना हो, how the fuck can she tell this यार? I have no idea. I have okay. मेरी यूजर मेरे को बता रहा है ये बात, पता है मैंने उससे नहीं सुनी। एंड शी टोल्ड मी कि अब मेरे को बताओ कि मैं कैसे नहीं बात करूंगी इनसे। और कहती वो इसकी बात चाहे झूठी निकले यार, ठीक होगे कि चाहे ठीक भी ना हो, हाउ कैन शी टेल दिस? शी डजंट इवन नो मी। उसको ये नहीं पता मैं रहती कहाँ हूँ, मेरा एड्रेस क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी चार्ट देख। एंड अब तो ये कस्टमर फॉर लाइफ है, ये कस्टमर फॉर लाइफ है। और मेरी रात को इतनी फट गई, नींद नहीं आई मेरे को, भूत पर रहता हूँ, डर लगने लग गया कि चल क्या रहा है ये। तो मतलब अब क्या था, जब ऐसा कस्टमर आपका बन गया ना, दे वुड मार्केट एंड दे वुड मार्केट टू एन एक्सटेंट कि हमारा यहाँ पे सिस्टम बैठ गया था कि मतलब वी डोंट हैव दैट मेनी स्लॉट्स अवेलेबल। ठीक है, तो मैं अपनी प्रॉब्लम्स पे इतना उलझ गया उसके बाद से, टिल डेट आई एम जस्ट सॉल्विंग दोस प्रॉब्लम्स व्हिच आर कमिंग इन द ऐप एंड द ऐप इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। ठीक है, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम आ गई, सारे स्लॉट भर गए, देन वी हायर्ड वन मोर एस्ट्रोलॉजर। तो मैंने 10-15 लोगों के इंटरव्यू ली, सारे रिजेक्ट करके एक हायर किया, तो फिर एक और बढ़ाया, ऐसे ऐसे करके यू नो वी हायर्ड एस्ट्रोलॉजर्स। तो पहले बंदे का जैसे इंटरव्यू सारे उसने ही लिए, हिना ने, तो बड़ा टाइम था उसमें। तो जब 2 लोग हो गए तो 2 लोग रहने लग गए। दैट इज हाउ वी स्टार्टेड गोइंग, एंड वी मेड श्योर कि जिसको भी हम हायर करें, वी टेक अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज एंड इंश्योर कि क्वालिटी एस्ट्रोलॉजर्स हमारे पास आ रहे हैं, ऐसे गंदवंद नहीं उठ के आ रहा है, इसको आता नहीं है, पता नहीं है, सता नहीं है कुछ। So that is another you know key aspect जहाँ पे we have not compromised till now. तो वहाँ की वजह से I think जो ट्रस्ट होता है ना, ये सारा बिजनेस ट्रस्ट पे है। So we have done everything which was required to build customers' trust.
be it hiring the best quality astrologers, be it customer experience. If you like you've used our app, you'll see the customer experience would be excellent. We have not spent a lot of time in designing small things very well, so it would not look that well designing wise, but if you use the UX, the user experience would be flawless. It works. And it works. My money I had installed and मैंने ऐसे थोड़ा जानबूझ के बदतमीजी वाला मैसेज डाला. I was like चेक करते हैं. तो मैंने थोड़ा ऐसे क्या है ये मेरे पैसे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे. तो समथिंग सेट मतलब दैट वाज आल्सो वेरी स्टूपिड ऑफ मी क्योंकि 1 मिनट पहले मैंने डाला था. ऑफ कोर्स वॉलेट में रिफ्लेक्ट करने में टाइम लगेगा. द पर्सन बहुत नॉर्मल. तो देयर वाजंट सो जनरली कंपनीज में क्या होता है ना, बहुत ट्रेडिशनल मैसेजेस होते हैं, वो इंग्लिश में पहले से ही लिखे होते हैं, ऐसा लगता है कॉपी पेस्ट करके तुम्हें भेज रहे हैं. ये बिल्कुल नहीं था. द पर्सन रिप्लाइड एकदम प्रॉपरली कि अच्छा सर लेट मी सी एंड गेट बैक टू यू एंड देन 5 मिनट्स बाद सर प्लीज चेक नाउ इट वुड बी रिफ्लेक्टिंग. सो इट सीम्ड लाइक आई वाज टॉकिंग टू अ रियल पर्सन रादर देन अ हैंडबुक. वरना वो हैंडबुक बनती है कस्टमर रिस्पॉन्स की. इट डिडंट सीम लाइक आई वाज टॉकिंग टू अ हैंडबुक. इट सीम्ड लाइक मैं किसी फ्रेंड से बात कर रहा हूं और उसने बोला कि यार तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, व्हिच वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो मतलब फिर जैसे कस्टमर एक्सपीरियंस की प्रॉब्लम थी ना, तो वो पूरा सॉल्व कर दिया. मेरे को काफी लोगों ने शुरू से मेरे को बोलते हैं यार डिजाइन में थोड़ा और इन्वेस्ट करो. मैंने कहा डिजाइन मीन्स नथिंग, इट इज द एक्सपीरियंस व्हिच मैटर्स. और यहाँ पे मैंने बटन भी ना बड़े बड़े बना रखे हैं. तो कहीं पे किसी भी ऐप पे यूज करो बटन छोटे छोटे होते हैं. सो माय फंडा इज इट शुड बी सो ऑब्वियस. आराम से क्लिक करो ना यार, यहाँ पे दिक्कत क्यों नहीं है. सो इफ यू सी योर होम स्क्रीन इट वुड हैव बिग बॉक्सेस जो कि एक्शनेबल आइटम्स हैं, एंड वी मेक इट वेरी क्लियर टू यू कि हाँ आपने यहाँ से एक्शन लेना है. सो ऐसा है ही नहीं कि हमने 50 चीजें दिखा दी लिस्ट में. लोगों के होम स्क्रीन देखो ऐसे पीछे तक कितनी सारी लंबी सी होती है, एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू. हमने सीधा बताया आपको यही करना है. वी डोंट गिव यू अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. तुमने चैट करनी है, कॉल करनी है, करो. उसमें चैट पे क्लिक करोगे, लिस्ट आ जाएगी, उसमें बटन है चैट का, कर दो. पैसे नहीं होंगे तो कहेगा पैसे डाल दो, चैट और सीधा व्हाट्सएप की तरह चैट चलेगी. सो वी हैव मेड दैट थिंग वेरी फ्लॉलेस. एंड उसके बाद होता है कि कस्टमर का ट्रस्ट तुम कैसे जीतते हो कि अगर कोई इशू आ जाए उसको यू प्रोवाइड देम 24/7 सपोर्ट ऑफ पीपल. ऐसे नहीं कि बॉट है वहां पे. देयर आर कस्टमर्स अबाउट पीपल सिटिंग देयर एंड दे टेक केयर ऑफ ऑल द इश्यूज व्हिच दे गेट. एंड फिर हमने एस्ट्रोलॉजर्स को भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रखा हुआ है कि कहीं पे थोड़ा सा इशू होगा, विल रिफंड and will not ask too many questions to customers. And if they have suffered something on our app, they should be given the refund. So उसके terms में we are very friendly. मेरे को कस्टमर सर्विस के बारे में आपसे बात करनी है बिकॉज मतलब आई हैव सम क्वेश्चन, बट उससे पहले जस्ट सो दैट पीपल अंडरस्टैंड, एस्ट्रोटॉक का अभी मंथली रन रेट क्या चल रहा है या डेली रन रेट क्या चल रहा है, नंबर ऑफ यूजर्स, थोड़े नंबर्स अगर आप दे दोगे ना तो हमें कुछ आइडिया लगेगा कि ये 7 लाख वाला बिजनेस बना क्या एक्चुअली. तो जो वो 7 लाख महीने का हमने सोचा था वो 7 करोड़ क्रॉस कर गया है. सो वी आर डूइंग 7 CR प्लस ऑफ रेवेन्यू मंथली. एंड कुछ हमारा डेली का 20-25 लाख के आसपास रहता है. सो एंड मैंने तो कभी इमेजिन नहीं किया था. सो व्हेन आई स्टार्टेड आई नेवर थॉट कि इट वुड रीच दैट हाइट. एंड फंडा सिर्फ मतलब बेसिक सा मेरा यही था कि जैसे मैंने बताया व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज नॉट वेरी होपफुल कि कितना बड़ा होगा बिजनेस, बट आई वाज वेरी श्योर कि इट हैज इमेंस वैल्यू एंड पोटेंशियल टू रीच समवेयर वेयर आई डोंट नो. एंड जैसे ऐप स्टार्ट की उसके बाद देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड आई एम जस्ट सॉल्विंग दोस प्रॉब्लम्स एंड आई हैव नॉट लुक्ड हियर एंड देयर. तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते वी हैव रीच्ड हियर एंड स्टिल ग्रोइंग. फर्स्ट प्रिंसिपल्स बेस्ट है वो कि भाई मेरे पास एक वैल्यू है कस्टमर को देने के लिए, अब मेरे को कस्टमर बताता रहता है, मैं उसको प्रोवाइड करता रहता हूँ. बट इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स आपके अभी कितने यूनिक यूजर्स हैं? आई थिंक आपने वही बोला कि भाई रोज आते हैं. मेरे को भी लगता है, मैंने भी आज चैट किया, जबकि मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मैं कह रहा हूँ अभी भी, बट मैंने आज भी किया है, कल रात को भी किया था, परसों भी किया था. तो ये रिपीट रेट कितना है? कुछ उसके बारे में अगर आप बता दो तो, कि यूनिक यूजर्स, रिपीट रेट एक्सेट्रा. Repeat rate is something which is the key factor of this business. So anyone who comes to our app, he speaks to an astrologer on average of 1.25 times a month. Okay. So if I talk about anyone who joined 1 year ago, so he must have taken at least 13 sessions till now. Acha. So that is actually repeat rate of 13 is actually a very big number, which no industry has. I don't know if any industry has such numbers. So 13 actually is a very big number.
पेइंग इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा आपको, मतलब वही इंस्टाग्राम वगैरह से कम्पीट कर रहे हो तो बात अलग है, बट समबडी हु इज पेइंग, पेइंग की बात है ना. इंस्टाग्राम का तो चलो अलग ही पड़ता है ना, वो तो सोशल मीडिया तो which is free of cost is something else. But yeah, 13 times, otherwise no one would come back. What is the average session? Average session is around 8 to 10 minutes and the cost goes around 250 rupees. 200 से 300 के बीच में 250 I'm just saying. 250 rupees, so मतलब 20 rupees a minute ish. हाँ. अच्छा, and how many astrologers do you have on the platform? 9 rupees per minute पे average आती है. अच्छा. And how many astrologers on the platform? We have close to 1000 astrologers, out of which about 800 are active, जिनकी सैलरी जाती है हर महीने. तो ये सैलरी नहीं है एक्चुअली, ये कंसल्टिंग फीस है. कंसल्टिंग फीस, या सो about 800 get paid every month. अच्छा, अब आते हैं वो क्वेश्चन पे which is again the best and the most candid training video I have ever seen. ये वीडियो आगे देखो ना देखो, आई वुड रिक्वेस्ट माई व्यूअर्स, मैं लिंक डालूंगा. देयर इज अ ट्रेनिंग वीडियो दैट पुनीत हिमसेल्फ हैज शॉट फॉर हिज एस्ट्रोलॉजर्स. देयर आर एक्चुअली 2. जो फर्स्ट वाली है सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें सेल्स और जस्ट लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, आप भूल जाओ बिजनेस में, की टेक्निक्स इतनी बढ़िया है, इट्स अनबिलीवेबल. एंड बी द चॉइस ऑफ वर्ड्स इधर नहीं ऐसे नहीं करना है. मतलब इट इज सो कैंडिडली एंड सो फनीली डन. इट इज मेरे हिसाब से इट इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड वीडियोस ऑन यूट्यूब. तो इफ यू अलाउ मी, मैं उसको थोड़ा सा डालूंगा भी इसके बाद, बिकॉज मैं 1-2 चीजें उसके शॉर्ट्स डालना चाहूंगा. बट इफ यू कैन जस्ट टॉक टू अस अबाउट ये जो आपने इंश्योर किया है कि भाई हमारे जो एस्ट्रोलॉजर है वो क्या दे कस्टमर को, और उसके लिए ट्रेनिंग और उसके लिए इंटरव्यू, क्या प्रोसेस क्या है आपका, और यहाँ तक कैसे पहुंचे. शुरुआत में तो इतना नहीं हो पाता होगा, शुरुआत में तो आ जाओ वही बहुत बड़ी बात है. तो ये जो आपने एक स्टार्ट किया प्रोसेस विद हीना जी टू नाउ मैनेजिंग 1000 एज यू सेड 1800 एस्ट्रोलॉजर्स एंड मेकिंग श्योर कि वो सारे प्रॉपरली जवाब दे रहे हैं, सारे मतलब एक कंसिस्टेंसी है ऑफ द एस्ट्रोटॉक ब्रांड. इसमें आपका पूरा प्रोसेस क्या रहता है? एक बहुत छोटा सा एजेंडा होता है इसमें. वो अगेन कस्टमर से उठ के आता है. तो वी नीड टू डू कस्टमर सेगमेंटेशन कि कस्टमर हमारा कैसा है. ठीक है, तो हमारा कस्टमर कैसा है कि जो जिसकी लाइफ में कुछ ट्रबल चल रहा है. ठीक है, एंड द कस्टमर इज फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम हिज ओन लाइफ और हिज ओन प्रॉब्लम्स. अब आप खुद जब कभी फ्रस्ट्रेट होते हो तो आप हर बंदे पे गुस्सा निकालते हो. यू डू दैट राइट. द सेम थिंग द कस्टमर वुड डू. सो दैट वाज द इनिशियल एजेंडा. मेरे को जो समझ आया है कि now the customer would not come and talk to the astrologer politely. They would be irritated, and then the industry is astrology जिसमें लोग पहले से इतना trust नहीं करते थे. Now we are trying to build that trust. So they would not talk politely. And now you talk about astrologers. So astrologers का क्या होता है? So even if I'm running AstroTalk, like I said, I'm very honest. So they think they are superhuman. ठीक है, so they cannot say that they are God, and we should also not say that. But they are very confident about whatever they say, and it comes out in their language also. कि मैं बोलूँगा आपके साथ ऐसा होगा तो होगा. And they should not talk like that, right? At least to the person who is very underconfident, is frustrated, you have to talk to them in a very loving way. In a very अपना दिल खोल के बैठो वहाँ पे, and you talk to them like your kids. And that was one thing which I wanted to change. दोनों साइड से आई गॉट टू लर्न कि कस्टमर बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है एंड एस्ट्रोलॉजर इज वेरी कॉन्फिडेंट. एंड वो ऑल्दो तो मिक्स एंड मैच सही है, बट दे शुड नॉट टॉक इन ए वे कि भाई तुम्हारे साथ तो ऐसे ही होगा यार. अगर किसी का नेगेटिव है तो दे शुड नॉट से कि हाँ तुम्हारा तो ऐसे ही है यार. आई मेट वन एस्ट्रोलॉजर जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा था, तो मैंने उसको एक चार्ट दिखाया एंड सेड कि इनको तो बोल दो कि अब तो बहुत बुरा टाइम है, बस हाथ जोड़ के भगवान का नाम ले और जिंदगी काट ले. व्हाट डू यू मीन? Are you serious? Yeah, in an interview, he told me this thing about one customer, and I was just taking that interview. Are you serious? Like, how can you talk like that? यार ये तो मैं बता देता हूँ बिना एस्ट्रोलॉजी जाने, तू ऐसे बोला क्यों? So he said कि आप देख लेना. मैंने कहा मेरे को देखना नहीं है. I rejected him there. तो उससे पता लगा कि we need to hire those astrologers who are very compassionate. They show empathy for people. And
एंड कुछ लोग जो उसके बिना हायर हो गए थे या जैसे भी था, सो दिस ट्रेनिंग वीडियो केम आउट to just explain them that they have to show that empathy, they have to show that love to customers, and I made sure to also tell them indirectly कि you will only get work from AstroTalk if you do this. ठीक है, so I told them कि, और हमारे यहाँ पे रैंकिंग सिस्टम भी होता है जो एस्ट्रोलॉजर्स को दिखता है, एंड रैंकिंग का नाम भी है मोस्ट लव्ड एस्ट्रोलॉजर, मोस्ट अडोरेबल एस्ट्रोलॉजर. So it is all about the kind of love you are giving out. So prediction के लिए तो हमने आपको छांट लिया ना कि आपको prediction तो आता है, तभी तो आपको लाए हम यहाँ पे. So that goes without saying. So we don't talk about predictions now. So now we have to talk about लोगों से बात कैसे करना है. So that is what matters. तुम बात कैसे करते हो. और अभी भी है कुछ लोग बोल देते हैं and then they see the impact also. गलत बोल के देखो यहाँ पे पूरा business बैठ जाता है उनका. So we have that kind of strictness कि you have to be very kind to customers. We are in a service industry. You cannot just show your aggression just by saying कि यार मेरे को तो ये है, ऐसी होगा, मैंने बोल दिया. कोई और बोल रहा है तो जाने दो. अब वो कह रहा है कि मेरी बंदी वापस आएगी या नहीं आएगी, वो कह रही है ये नहीं होगा आपके साथ, अब मैं बोल रहा हूँ तुम ऐसे तड़पोगे 2 महीने 4 महीने, अब आपका कुछ नहीं होगा, उसके बाद मेरे साथ दोबारा आना. This is not the way to talk. Even if you want to communicate the same thing, you do it, but you need to choose your words wisely. So the video, the essence of the video, if you have seen it, the essence of the video was to just give out that love to people and make sure those people love you. अगर वो लोग आपको गुरु की तरह मानते हैं, I remember like I told I was talking to that a few customers when we started with Hina, and that customer told me मेरे को बताओ आप कहाँ पे हो. मैंने कहा मैं नोएडा में हूँ. तो मैं नोएडा आता हूँ. So वो he was somewhere in I think कर्नाटका. He said मैं नोएडा आता हूँ, मेरे को बस हिना जी के पैर छूने. तो मैंने कहा हिना जी यहाँ पे नहीं है नोएडा में, हिना जी मुंबई में है. तो मैं मुंबई जाता हूँ, बस मेरे को पैर छूने हैं. तो I was like this is not allowed, you cannot meet them, you can just talk to them over a call and you cannot do video call also. तो मतलब प्लीज बस मेरे को पैर ही छूने, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को बस पैर छूने हैं. So this is the kind of love they give back to astrologers, right? When their work is done, if they are into some problem and astrologer helps them, this is the kind of love they give back to astrologers. And this is not something which anyone would do. कौन बोलेगा यार तुम्हें जानता नहीं पहचानता, तुम्हें पहले तुमने पैसे लेके उसका काम किया है. It is give and take. वो कह रहा है पैर छूंगा आके यार, this is something immense यार. मतलब you should also respect that thing. तो वही चीज मतलब I want to ingrain into our system कि everyone has to do this. It goes from to our employees. It goes from our employees to our astrologers. And then it has to propagate from astrologers to our customers. And if it doesn't happen, then we will not allow anyone in the system. So it is as simple as that. हाँ, तो what matters to me is अगर उसको अच्छा लगा बात करके उस एस्ट्रोलॉजर से, वो उससे दोबारा बात करेगा. ठीक है, वो दोबारा बात क्या करेगा, वो बार बार बात करेगा, वो छोड़ के नहीं जाएगा उसको. So that is one thing we started measuring. कि आपको कितना प्यार वो करता है कि वो आपके पास बार बार आ रहा है. Because we have seen कि any customer who gets a good prediction from astrologer A, तो वो हर बार पूछने के लिए आता है A के पास. To an extent कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. Sometimes I find them so funny, but people are they believe in those astrologers so much कि वो पूछते हैं. आया उसका क्वेश्चन उसके पास कि मेरा लैपटॉप स्लो चल रहा है, आज मैं क्या करूं. Like it was like so funny to me, but those people they trust astrologers so much कि वो हर बात अभी कर लेते हैं जैसे दोस्त से बात करते हैं. जैसे अब मैं दोस्तों में बोल दूंगा अरे यार लैपटॉप नहीं चल रहा आज, and they think to the astrologer also लैपटॉप नहीं चल रहा है यार, क्या दिक्कत है. They start doing that, and that is how we measure कि how much love they are getting from the universe. So the way it started ना कि हिना के पैर छूने हैं. So that is how I've started measuring everything internally कि उस बंदे को कितना प्यार मिल रहा है दुनिया से. And that is the way we sort the astrologer list. Do you know who's Warren Buffett? Warren Buffett पता होगा कौन? So Warren Buffett की एक वो है कि कहावत है, मतलब there's a story when he's talking about See's Candy. See's Candy is a business that Warren Buffett owns, and he says कि when you buy a box of chocolates from See's Candy and you give it to your girlfriend on Valentine's Day and she kisses you, then we have you for life. फिर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे कि भैया सीज कैंडी से किस मिलती है तो अब कल डेयरी मिल्क नहीं खिलाऊंगा मैं, सीज कैंडी पक्का खिलानी है.
एंड उसका That's प्राइस मैं कितना ही दे दूं, कितना ही बढ़ा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता. आई थिंक Yeah. वही चीज है इधर भी हाँ. कि एक बार हीना जी या सम एस्ट्रोलॉजर हैज प्रिडिक्टेड कि ए आपको अच्छी फीलिंग दे दी कि भाई आपकी लाइफ सक्सेसफुल होगी, जो भी प्रॉब्लम है चली जाएगी, और दूसरा एक दो चीजें अच्छी प्रिडिक्ट कर दी, यू नो, कि घर बदला है एज यू सेड, या एक कोना दबा हुआ है. सो देन वंस यू डन दैट फॉर मी, ऑफ कोर्स मेरे को पैर छूने, और अगर वो फीलिंग आ रही है पैर छूने की, तो प्राइसिंग पावर आपके बिजनेस की बहुत स्ट्रांग होगी. एंड मैटर नहीं करता है उसके बाद, कुछ हाँ. मैटर नहीं करता. ये आपने And- नोटिस किया है क्या कि क्या? प्राइसिंग पावर के ऊपर, कि अगर आप जैसे जो एस्ट्रोलॉजर हैं उनका अगर आप रेट बढ़ा रहे हो, तो क्या कस्टमर जा रहे हैं दूसरे वाले एस्ट्रोलॉजर पे, या वो उसी एस्ट्रोलॉजर पे डजंट मैटर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी डोंट कंट्रोल प्राइसिंग. अच्छा. सो प्राइसिंग इज इन द हैंड्स ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स ओनली. वो Okay. सेट कर सकते हैं एंड वी टेक ए कट ओवर इट. तो वो उनकी मर्जी है, बट वी हैव सीन कि जिस एस्ट्रोलॉजर के जो कस्टमर्स बन गए, दे डोंट लीव देम नो मैटर व्हाट. तो प्राइसिंग इज नॉट ए फैक्टर फॉर देम. सो प्राइसिंग surely is a factor when they start talking to them, but it is not a factor once they start trusting that astrologer. उसके बाद बिल्कुल मैटर. And can you have different rates for different customers for the same astrologer, या एक एस्ट्रोलॉजर का एक ही रेट है irrespective of the customer? We are not doing it as of now. अच्छा. Okay. Yeah, but as far as I understand business, probably people do that after a while, but we are not doing it. So we try to keep it as low as possible. Because we are still at a stage where I feel we have not even kept it 1% of the market. And if we are at that stage, so we want to keep it, as low as possible for customers. Just let's get a hang of it. ना तभी हमने first session free दिया हुआ है. First session free कौन देगा? So we are paying astrologers, but we are giving first session free to customers just because we want them to try it out. अगर मेरे को हीना ने फ्री में मेरे को ना बताया होता कि 2 साल अगले अच्छे होंगे, ये होगा वो होगा तेरे साथ, फ्री में चिपकाया था ना उसके मेरे को. अगर वो ना चिपकाया होता तो आई वुड नॉट हैव बीन डूइंग ऑल दिस. ठीक है. तो दैट इज द रीजन वी गिव आउट वन सेशन फॉर फ्री, कि आप ट्राई करके देखो. इफ यू लाइक इट यू विल कम बैक. आपको वहां से वैल्यू मिलेगी ना कुछ. सो वी वांट टू गिव दैट वैल्यू टू यू. और हमें पता है कि इफ वी क्रिएट दैट वैल्यू इन द कस्टमर्स माइंड, देन ही कैन नॉट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम कमिंग बैक टू अस. ही कैन नॉट. वो कर ही नहीं सकता है. ऐसे उसके पास है नहीं है, वो तो आना ही पड़ेगा, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ वैल्यू. Just as a product feature, a brilliant product feature that you have is कि कॉल के बीच में ही अगर मेरा टाइम खत्म हो रहा होता है तो वो बता देता है कि क्या आपको 100 रुपए का रिचार्ज करना है, तो ये कॉल कंटिन्यू, ये टॉक कंटिन्यू, चैट कंटिन्यू रहेगी. एज लाइक ये अगेन बहुत ही सुंदर फीचर कि इट्स सो सिंपल बट आई एम श्योर इट इज वेरी इफेक्टिव. कि बहुत लोग मतलब कितने लोग ऐसे साइड में से जाके नॉर्मली रिचार्ज करते हैं और कितने लोग चैट में रिचार्ज करते हैं. आई थिंक चैट में बहुत ज्यादा लोग रिचार्ज कर रहे होंगे. इट्स अ वंडरफुली ब्रिलियंट फीचर. अभी आपने बोला कि अभी हम जो है ग्रो कर रहे हैं, ठीक है. तो हमने तो अगेन वही, मेरे को 7 लाख वाली फिगर याद है. हम ग्रो कहाँ कर रहे हो? 7 लाख का तो बिजनेस है ये, 7 लाख पर महीने का. तो अब जब हमें ज्यादा पता चल चुका है कि बिजनेस कितना बड़ा है, थोड़ी इंसाइट है, एंड अभी हम हैं 7 crore per month, right? 7 crore you said. हमें क्या लगता है नाउ कितना बड़े मार्केट है ये एक्चुअली, या अभी भी आइडिया नहीं है एक्चुअली कितना बड़ी मार्केट हो सकती है? यार ऐसा होता है कि हम ना थोड़ा सा, क्या होता है कि कोई बिजनेस होता है, when it starts at an exponential rate. जब वो सक्सेस देखता है, टाइम के बाद ना the curve starts flattening. ठीक है. That's how you realize कि अब हाँ इतना सा रह गया. So we are still on an exponential curve. ठीक है. So how do we measure it? There are a couple of ways to measure it. एक तो ये है कि जैसे हम CAC कैलकुलेट करते हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या है हमारी. या तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हम निकालते हैं कि चलो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हमारी बढ़ने लगी है, मतलब जो अच्छी जनता थी वो सारी ले आए हम, अब वो सेकंड लेवल की जनता है वो आ रही है. बट इट इज नॉट द केस. द कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज नॉट इंक्रीजिंग. ठीक है. तो अभी भी वो बहुत अच्छा चल रहा है. So that is one. So obviously we cannot अभी predict कि हाँ अभी saturation आने वाला है. So it is nowhere near. ठीक है. Now the second part is very interesting. Second part is that कि जैसे I told you कि मैं कस्टमर से बहुत बात करता हूँ. So what I did an experiment कि हमने ad चलाई Facebook पे and people are seeing that ad, they are coming to our app and using it. ठीक है. We went back to those customers and we asked them कि आपने AstroTalk use किया. So what is your history? Have you consumed astrology before? Did you speak to any astrologer before in your life?
या have you consumed astrology online? Hmm. And you're so surprised to know most of them had done nothing of it. Nothing. उनको बस डीएनए में एस्ट्रोलॉजर का एक्सपोजर था क्योंकि पेरेंट्स बात करते थे, ठीक है, एंड दे हैव नॉट यूज्ड इट, एंड वो यूज भी नहीं करते, वो गाली देते मेरे जैसे थे कि नहीं करना यार, एंड नाउ दे यूजिंग इट. मैंने कहा अब क्या हो गया फर्क? कहते अब भी ऐसे ही है, हम गाली देते हैं, दूसरों के सामने देते हैं, हम यूज करते हैं. So I'll tell you one more interesting story around this. So we just to finish this कि उससे ये रियलाइज हुआ कि अभी मार्केट जो है, so we are not attracting those customers who believe in astrology. We are attracting those customers who are in some problem and they need a solution. So if I've come down to that data, I'm damn sure we have not covered 1% of it. There's a lot of it to come. 100%. मतलब आपका business है, of course you know more. I completely agree कि you're attracting customers who are new, who are actually astrology से कोई ज़्यादा लेना देना है भी नहीं उनके belief को. I think it is more about them being in a phase and then that's why they're coming. And astrology is the way they are trying to solve that problem, which is amazing. इससे मेरे को एक चीज थी कि आई नो यूड सेड वंस कि जब हम इनिशियली बनाया था हमने ऐप, तो हम 40+ के लिए ऐप बनाया था हमने, 40+ डेमोग्राफिक के लिए बनाया था. अभी फिर 25 से 35 वाला हो गया या उससे भी शायद कम, एंड विच आई थिंक अभी भी होगा. आई एम श्योर इट्स द यंग कस्टमर्स, because I can tell you about my house. My mother, my father, both consult astrologers. They had not heard of AstroTalk, or even if they had heard of AstroTalk, वो कभी नहीं जाते अभी. मतलब अभी मैंने बोला तो आज गए शायद, बट वरना वो कभी नहीं जाते. एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री. लाइक चैट पे बताना ये सब चीजें, आई डोंट नो हाउ मच पीपल ऑफ 40+, 50+ कैटेगरी आर ओके विद दैट. तो इज दैट समथिंग यू हैव नोटिस्ड, एंड इफ यू हैव, आप क्या कर रहे हो चेंज करने के लिए? एंड दूसरा क्वेश्चन कि आपने बात कही थी ईगो ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स की, which is very very important, because I think दो parallel industries चल रही हैं यहाँ पे. I think traditional astrologer वाली industry अभी भी चल रही है, where जो astrology में believe करते हैं वो लोग अभी भी जा रहे हैं, वो वाली consultations अभी भी ले रहे हैं, right? And the astrologers who have, there are people who charge 5,000 rupees for 5 minutes, मतलब crazy numbers. I think आपके platform पे अभी वो है नहीं, अब वो वाले astrologers अभी आपने नहीं डाले, at least I didn't see those prices. So are you eventually targeting those elite star astrologers? And are you going, what are you doing to get the traditional astrology market, जो 40-50+ मम्मी पापा की market होती है, आप उसको कोशिश कर रहे हो एस्ट्रोटॉक पे लाने की क्या? ठीक है, तो सी एज यू मेंशन कि जब हमने स्टार्ट किया था मेरे को लगा था 40 से ऊपर के लोग यूज करेंगे, क्योंकि यंग जनता क्यों यूज करेगी. एंड देन आई केम टू नो कि 40 से ऊपर वाले बहुत कम हैं, मोस्टली सब 25 से 35 के हैं. एंड देन वी रियलाइज्ड कि अभी 25 से 35 में ही देयर इज सो मच टू डू, एंड दिस is the age when people are the most confused in their life. 25 से 30 और 30 से 35 दो ग्रुप होते हैं, शादी से पहले, शादी के बाद. शादी से पहले तो बहुत कंफ्यूजन होती है कि भाई तुम सेटल नहीं हो बिजनेस में, अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अब शादी करनी है नहीं करनी है, किससे करनी है पता नहीं, एंड फिर वेकअप भी हो रखे होते हैं उस टाइम. तो 25 से 30 इज द मोस्ट वल्नरेबल फेस इन एनी ह्यूमंस लाइफ, ठीक है. एंड उसके बाद शादी हो जाती है, देन दे रियलाइज कि द लाइफ हैज सो मच चेंज्ड, एकदम से लाइफ बदल जाती है. एंड देन अगेन दे डोंट अंडरस्टैंड क्या चल रहा है, अब क्या करना है, क्या चेंज करना है. तो दे टेक 2 to 4 years टू सेटल डाउन. तो वो कहीं ना कहीं आके ना 25 से 35 का एक सेक्टर बन जाता है, विच इज आवर कस्टमर सेगमेंट, विच इज द सेक्टर विच वुड लाइक टू कंज्यूम एस्ट्रोलॉजी मोर देन एनीवन एल्स. वी बिलीव 40 से ऊपर लोग करेंगे, ठीक है, एंड दैट इज ट्रुथ. अभी अगर आप जनता निकालोगे, एस्ट्रोटॉक को छोड़ दो एक बार, या हमने जितने कस्टमर कन्वर्ट करे उसको छोड़ दो, तो ऑब्वियसली 40+ से ज्यादा लोग में परसेंटेज ऑफ बिलीफ इज मच मोर देन एनीवन बिलो दैट. बट दिस इज द एज 25-35 when people are more confused and they need external help. And India is one country wherein they would not go to a psychologist. And not everyone is
psychologically unfit also. They're just stressed or just unwell, or they're not doing well, or they're very confused about life. So they obviously don't need a psychologist also. A few may need a psychologist also, but no one will go to that. Now coming to astrology, so the barrier to consume astrology is very less in India. Why? Because when we were young, no, all of us, I'm talking about all of us, everyone in India, we have been exposed to astrology in some way or the other. Maybe in a negative way. Maybe जो उसने बताया था सब झूठा था, वो ढोंगी था, उसने हमारा काम सत्यानाश कर दिया. But all of us were exposed to astrology in some way or the other. Maybe not to a very good astrologer, but to a worse astrologer. But we have been exposed. Now, when we are at the age of 25 plus and we are very confused about life and we don't know what to do, so we would need an external help. And we know astrology एक चीज होती है, ठीक है, पता नहीं चलती है, but होती है. And now we show an ad to them and we tell them कि ऐसे है, and then they read the customer reviews which are again positive. They feel कि चलो ठीक है, let's try and see. ठीक है, अब try में क्या होता है, you need to pay money. ठीक है, they've removed that part also. You come and try for free. ठीक है, free में try करते, they are coming and trying for free. And then वो free में try करके उनको लगता है कि हाँ भाई अच्छा काम हो गया, अच्छा लगा. And जब अच्छा लगे वाली feeling आ गई, या in simple words, we have created that value for the customer. Now he would not mind, because वो 25 से 35 they are again in an age where they are earning well. ठीक है, तो age में mostly people are earning at least, and they can spend at least 200-300 rupees which you are charging. Minimum 100 रुपए में बात हो जाती है. So then they get exposed to our platform, and then once they are coming to this, it is actually very addictive because it is creating that kind of value. Because in today's day and age, we are stressed about everything, be it our job, our life. Even in a job, every day कुछ ना कुछ हो जाता है यार ऑफिस में, इतना स्ट्रेस होता है, रात को नींद नहीं आती. So तब you have a resort जहाँ पे you can just park all those feelings to an astrologer and he will guide you well. So and the barrier is very less. So that's where we have captured it quite well by creating that trust, creating that credibility in the market कि हम जो कर रहे हैं हम तुम्हें लूट नहीं रहे. So we have put that out very well कि यहाँ पे लूटा नहीं जाएगा. And now in the new feature you will also see a message on the home screen itself from my side that यहाँ पे we can fuck up, but कुछ भी गलत होगा we take full responsibility, and then अगर कुछ भी होता है we'll take care of it. अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपके बदतमीजी करता है, हो सकता है कर दे वो मार्केट प्लेस, हो सकता है वो कर दे. We don't saying कि सब कुछ अच्छा जाएगा, हो सकता है कुछ हो जाए, but then we are sitting there to assist you and we'll take care of it. You don't need to worry about it. That's the message I'm putting forward very honestly. So मतलब वो चीज है, तो credibility जो बना ली है ना, उसके बाद it becomes really easy for them to consume. That's I agree. And let's just अब Astro Talk as the business idea से Astro Talk as the business पे चलते हैं कि what it takes to build a business. And you said you started with one astrologer and then you've been solving problems every day. So what have some of these problems been? एक जो अगर आप if you could give us 2 to 3 problems that you saw in the beginning, which any startup founder would, but what you did and how you dealt with them, वो थोड़ा might be interesting for us to know. तो मोस्टली बिजनेस में क्या होता है ना, वो चिकन एंड एग प्रॉब्लम होती है, सप्लाई डिमांड दोनों लाना है, कैसे लाएं. सो हमारे को वो इतना नहीं था. सो डिमांड वाज नॉट दैट मच एन इशू क्योंकि आ रहे थे कस्टमर्स, बट सप्लाई वाज डेफिनेटली अ बिग इशू. एंड सप्लाई इज नॉट, आई वुड नॉट से सप्लाई इज अ बिग इशू इन दिस इंडस्ट्री. यू विल फाइंड एस्ट्रोलॉजर एवरीवेयर, नॉक एन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यू विल फाइंड इट. बट हमारे स्टैंडर्ड कुछ ऐसे थे कि हमें मिल नहीं रहा था. तो मैंने देखा कि जो अच्छी अच्छी साइट्स थी उस टाइम पे जो सबसे अच्छा कर रही थी, उनके मैंने एस्ट्रोलॉजर उठाए, उनको कॉल किया, पूछा. मैंने कहा ऐसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो कहते हैं हम तो इतना कमा रहे हैं. तो मैंने कहा हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ज्वाइन करोगे? तो कहते हैं आपके पास तो कुछ बिजनेस ही नहीं होगा, क्यों करे? तो मैंने कहा बिजनेस तो आ जाएगा ना, अभी इतना चल रहा है. कहते बहुत कम है. तो मैंने कहा मतलब इट्स अप टू यू, आप ज्वाइन करना चाहते हो? कहते चलो ठीक है, लेट्स ट्राई. तो मैंने कहा चलो ठीक है, बताओ आपकी इंटरव्यू कब? तो व्हाट डू यू मीन इंटरव्यू? मैंने कहा मतलब इफ यू वांट टू वर्क विद अस आई विल हैव टू इंटरव्यू यू. तो हम इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, आप हमारी इंटरव्यू लेके हमारी बेइज्जती करना चाहते हो? एंड दैट गर्ल शी स्टार्टेड येलिंग एट मी कि आपने कहा कैसे कि मेरी इंटरव्यू लोगे.
मैंने कहा ठीक है, क्षमा चाहते हैं। बिना इंटरव्यू किए तो नहीं होगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम वाज टू इंटरव्यू देम, दे वर नॉट रेडी, इनकी इंटरव्यू नहीं हुई क्योंकि, एंड बाकी जो प्लेटफॉर्म है वो कह रहा है कि स्टोरेज है, अच्छा स्टोरेज हो, आ जाओ। तो 20,000 रुपए लगेंगे, 25,000 रुपए लगेंगे रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, उसके बाद यू अर्न व्हाटएवर यू अर्न फ्रॉम हियर एंड आ जाओ। एंड आई वाज लाइक, मेरे को नहीं चाहिए 25,000 रुपए, मेरे को अच्छा आदमी चाहिए। तो कम हियर एंड ज्वाइन फॉर फ्री, वी डोंट चार्ज एनीथिंग एंड बट यू हैव टू गिव एन इंटरव्यू। तो बड़ी मुश्किल से लोग माने इंटरव्यू के लिए, बहुत परसेंटेज कम थी जो माने, उसमें से बहुत परसेंटेज कम थी जो सिलेक्ट हुए। लाइक आई टोल्ड यू ना, मैंने 15-20 लोगों से बात की, उसमें से एक सिलेक्ट किया। एंड इट वाज रियली डिफिकल्ट टू कंडक्ट दोस इंटरव्यूज बिकॉज़ वी हैड ओनली वन एस्ट्रोलॉजर टू टेक दोस इंटरव्यूज। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, फिर मैंने सीखना शुरू किया एस्ट्रोलॉजी कि इतना बेसिक सीख लूं कि मैं इंटरव्यू ले पाऊं। ठीक है, ताकि मैं इतना श्योर हो जाऊं कि हाँ मोटा मोटा इसको पता है। एंड देन आई क्रिएटेड द एल्गोरिथम कि कैसे उनको इंटरव्यू लेना विदाउट एन एस्ट्रोलॉजर आल्सो। तो मैंने 2-3 केस स्टडी बना ली, 2-3 लोगों की अलग अलग चार्ट, जो टफ से टफ चार्ट वाले लोग थे ना हमारे कस्टमर बेस से निकाले मैंने, और उनके पास्ट के ऊपर मैंने सारा लिख दिया पास्ट। एंड देन आई सेड कि ये लो कुंडली, अब मेरे को पास्ट बता दो सारा। तो फिर मैं ये नहीं हुआ, तो वो 70% से ज्यादा मैच करना चाहिए, अदरवाइज यू आर रिजेक्टेड। अच्छा, हाँ, तो द पास्ट शुड मैच अप टू 70%, अदरवाइज यू कैन नॉट जॉइन अस। ओके, एंड इट वाज रियली डिफिकल्ट टू ऑनबोर्ड एस्ट्रोलॉजर्स, इट वाज रियली रियली डिफिकल्ट। एंड जैसे उसने प्रेडिक्ट किया था ना बहुत पहले ही हिना ने कि 1.5 साल में स्ट्रगल करूंगा, साला इसमें ही स्ट्रगल कर लिया मैंने 1.5 साल। मतलब एस्ट्रोलॉजी नहीं ला पा रहा, इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट। और मैं ऐसा आदमी हूँ कि मैं नेगोशिएट नहीं होगा भाई ये चीज, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कोई बात नहीं। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी, एंड सेकंड वाज कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि लोग ऐसे बात कर रहे हैं, क्या है क्या फंडा। तो आई वुड इन्वेस्ट माय होल डे इन टॉकिंग टू दीज कस्टमर्स एंड अंडरस्टैंडिंग कि भाई चाहिए क्या। आई वाज नॉट समवन हु हैज कंज्यूम्ड एस्ट्रोलॉजी अ लॉट, राइट। मेरे को तो एक अच्छा प्रेडिक्शन मिला था, मेरे को बिलीव बन गया, बट मैंने कंज्यूम ही नहीं करी इतनी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्यों चाहिए। तो मेरा 1-1.5 साल इसमें लग गया कि जो मैंने इनिशियल जो 20-25 एस्ट्रोलॉजर लाए उसमें इतना टाइम लग गया, एंड मार्केट समझने में लग गया कि प्रोडक्ट बनाऊं क्या। तो इन आई थिंक अराउंड जुलाई और अगस्त 2018 दैट्स वेयर वी रीच्ड प्रोडक्ट मार्केट फिट। ठीक है, 1 साल टाइम लगा, और तब तक हमारे पास 25-30 एस्ट्रोलॉजर हो गए थे आई थिंक, जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे बहुत। एंड उसके बाद देन वी स्टार्टेड ग्रोइंग, उसके बाद आई स्टार्टेड हायरिंग लाइक एनीथिंग। फिर मैंने बिजनेस पे ध्यान देना शुरू किया। तब तक तो ये था कि इसको समझना है, समझना कहाँ से है, एस्ट्रोलॉजर पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस में प्रोडक्ट क्या चाहिए, प्रोडक्ट में इश्यूज क्या है, बस यही सुनता रहता था। उसके और मैंने सारा कस्टमर सपोर्ट खुद किया। और ये कितना टाइम लगा प्रोडक्ट मार्केट फिट वाला? 1 साल? 1 साल से ऊपर लगा। एंड आई वुड नॉट से कि 1 साल लोगों को लगेगा, बट मैं घुस गया था ना उसके अंदर। इफ आई वांट टू डू समथिंग आई विल डू इट परफेक्टली। तो उसके अंदर घुस गया, और कस्टमर सपोर्ट भी खुद करता था कि मैं ही करूंगा कस्टमर सपोर्ट, ताकि मुझे समझ आए प्रॉब्लम्स क्या है। अगर मेरे को यही नहीं समझ आया बिजनेस क्या है, तो साला चलाऊंगा क्या मैं। ठीक है, तो इनिशियल मैंने बेस बनाने में बहुत स्लो काम किया, और जब वो प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया उसके बाद से तो मैं भाग रहा हूँ जैसे। सो आई हैव बीन हायरिंग लाइक क्रेजी, सारे डिपार्टमेंट सेट होते जा रहे हैं, एंड ऑटोमेटिंग एज मेनी थिंग्स एज वी कैन टू स्केल टू दैट लेवल। तो अब स्केलिंग के आ रहे हैं अभी बिजनेस में। सो आई कैन टेल यू n number of problems going from day one to today, but all of those problems were being very honest to our customers, creating value for them, and solving problems. इसी पे आके सारा एक प्रॉब्लम तो एक और दिखती है, which I think you talked about, right? Code Yeti में although you're also an engineer, your main technical founder left. एंड अभी तक मैंने आपकी कहानी में वो नहीं सुना कि आपका ये फिर यू स्टिल रनिंग अ प्रोडक्ट, तो आपको एक टेक्निकल इंसान तो चाहिए होगा, विच इज अगेन अ प्रॉब्लम आई पर्सनली फेस्ड कि आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर, आई अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी, आई अंडरस्टैंड द कॉन्टूर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बट मैं कोड नहीं कर सकता, वो हो गया टाइम, गया वो टाइम, राइट? तो विदाउट दैट रनिंग अ प्रोडक्ट बिजनेस, how has that been, and how did you solve the problem of not having a technical co-founder? तो उसमें ऐसा था कि बिकॉज मैंने आईटी सर्विस कंपनी चला ली थी 2.5 साल तक। ठीक है, तो
मुझे बहुत सारे फंडे क्लियर हो गए थे. मैं तो खुद इतना टेकी नहीं हूँ, बट मुझे ओवरऑल सारा मतलब फंडा समझ आ गया था ऊपर की लेयर का. अब कोड करना नहीं आता, बट प्रॉब्लम सारी पता थी मेरे को, सोल्यूशंस क्या है मोस्टली पता थे. एंड देन वी ऑल स्मार्ट टू गूगल इट, जो चीज नहीं मिलती. ठीक है. एंड देन अगेन, सो the core team of AstroTalk, the core tech team of AstroTalk is comprised of all the members of Code80. तो Code80 के जो अच्छे बंदे थे वो सारे रखी है. ठीक है. तो those people have created a base, and अगर वो base पहले आ गया ना, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है. जो Code80 में स्टैंडर्ड बना था ना टेक का, तो वो सेम स्टैंडर्ड चलता जा रहा है. ठीक है. एंड देन although my partner left, but we have been really close friends तब से. ठीक है. एंड कभी कोई इशू आता है, I would just call him up, यार ये इशू आया बता, विदाउट हेलो हाय, यार इशू आया बताइए, एंड बोल क्या करती है. तो ही वुड हेल्प मी आउट इन दैट. ठीक है. तो कभी अटक भी जाता, सो आई हैव मेड अ लॉट ऑफ कॉल्स टू हिम आल्सो. तो मेरा 2 हफ्ते में एक कॉल तो जाता था, और इसी के लिए बात होती थी हमारी. तो ही वुड हेल्प मी आउट. कभी होता था, बता देता था. तो मैं बोलता था कि यार तेरे को आज एक डेवलपर कॉल करेगा, तो डेवलपर ऑलरेडी नो ऑल ऑफ देम, तो ऑलरेडी नोज, राइट. तो वो बात कर रहे थे तुमसे. मैं ऐसे नहीं कहता डायरेक्टली कर लो, मैं एक बार बोल देता तेरे को कॉल आएगा, तो कहते ठीक है. सो ही वाज हेल्पिंग अस आउट, एंड नाउ फॉर्चुनेटली ही हैज जॉइंड अस अगेन इन लास्ट मंथ, अगस्त में ही हैज जॉइंड अगेन. अच्छा. सो उसको मैं 2 साल से पीछे पड़ा हुआ था, यार आजा वापस आजा वापस आजा वापस. एंड ही वाज टेकिंग हिज ओन टाइम. उसकी शादी हो गई थी, चिल बैठा था बेंगलोर में. तो अभी आई काइंड ऑफ कन्विंस्ड हिम, तो लास्ट मंथ उसने जॉइन किया. हां, ओके. Now it's a little bit uncomfortable. थोड़ा question uncomfortable सा होगा, and you can choose if you don't want to answer. But as you said कि one of the problems that I see with the business is an astrologer having their own customer base and leaving with that customer base, especially in the beginning. जब 5 वो आए हैं तो वो जा सकते हैं ना. तो did that happen, or how did you? So astrologers चले जाएंगे, वो बोला एस्ट्रोलॉजर चले जाएंगे और अपना कस्टमर भी ले जाएंगे कि भाई व्हाई शुड आई बी ऑन एस्ट्रोटॉक. आप कट तो ले ही रहे हो, तो वो कट भी हटा दो सर, मेरे से फोन पे बात कर लो या व्हाट्सएप पे बात कर लो. तो आप उस चीज को कैसे सॉल्व करते हो? सी, सो द थिंग इज, हमारे कुछ लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं व्हिच दे हैव टू साइन. सो दे कैन नॉट शेयर एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एंड द नेम्स आर आल्सो नॉट, कि जैसे मेरा नाम पुनीत गुप्ता है, तो मेरा नाम वहां पे लिखा नहीं होगा पुनीत गुप्ता, वहां लिखा होगा पुनीत. So there are thousands of Puneet in the market. You cannot just search them as so easily. उसके बाद we have this thing कि अगर we catch them sharing any personal detail or any customer complains to us कि हाँ मेरा ऐसे बात हो गया था, so we charge them very heavy penalty. अच्छा. And they have signed those legal terms, and we do see these cases happening. But then again, so they are charged a heavy penalty, and then they also take a hit of business. So till that matter is resolved, their profile gets from, and they get no new customers. Old customers can still talk to that astrologer, but they will not be exposed to new customers. So and I have been very strict in most of the things I'm doing. Okay? And I am very honest and very helpful to everyone. But if you do anything wrong, then things are very strict. ठीक है. तो वो नहीं कर सकते. ठीक है. उसके बाद ये क्वेश्चन है वो छोड़ के चला गया तो, right? So right now there is an astrologer on AstroTalk, and that person is earning 6 lakhs per month. And that person gets work in a way कि अपना उन्होंने ऑनलाइन किया अपने आप को, and the phone starts ringing, and he or she has to mark themselves offline to have food, to have water. So that's the kind of work pressure they get, and this is not just repeat business. This is also new customers they are acquiring every day with the reviews which they are getting from repeat customers, right? तो अगर हम उनका आज बंद कर देंगे ना, and they go offline, they would probably take up customers, no doubt, but they would never be able to reach a scale wherein they'll get work without any marketing, without managing anything, without managing any funds. They just need to, they have a phone रखा है हाथ में, सिर्फ बटन लगा है, इसमें ऑन करना है, and start ringing, and every minute they are making money. And we have made it so convenient for them. They'll not do it. You talk about Amazon ना, तो Amazon पे लोग खुश है, Amazon में बेच के कट जा रहा है, जाने दो, इतना convenience है यार. You don't have to do anything.
बैठो, बिजनेस आ रहा है, कंप्यूटर बिजनेस आया, दे दिया. So you need to create that convenience for them कि they don't go anywhere. You have to create that credibility and trust in astrologers also, not just for customers. ठीक है? And we to just to extend it further. So a lot of astrologers were taking offline consultation of their earlier customers. है ना? उन लोगों ने वो बंद कर दिया. उनको बोला कि एस्ट्रोटॉक पे अवेलेबल हूँ मैं, वहां पे आके बात करो. Now why would they do that? Wow. They're taking cut also. And they were charging them 5,000 rupees for a consultation. And यहाँ पे 50 रुपए पर मिनट में बात होती है, 10 मिनट में चला जाता है 500 में बात करके. क्यों कर रहे हैं वो? Because they know कि यहाँ पे हर कस्टमर से उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है. It is getting multiplied and they don't have to manage anything. They don't have to manage finances. They don't have to manage money. उनसे पैसा लो पहले. पैसा लेने में ही बात होती है ना, नेगोशिएशन होती है. कस्टमर 5,000 यार 4500 लगा लो, कि नहीं 4500 नहीं 4600 लगा लो. 10 मिनट उसमें वेस्ट करेगा, फिर वो पैसा देगा, तुम चेक करोगे, फिर तुम बात करोगे, वो आधे घंटे की बात थी, वो खींच के 1 घंटा ले जाएगा. यहाँ पे no one can do anything. Everything is controlled, well controlled by the organization, and you don't need to do anything. Convenience देखो ना. आपने फ्रिक्शनलेस कर दिया ना, पैसा नहीं देखना, टाइमिंग नहीं देखना, कुछ प्रॉब्लम है कस्टमर सर्विस देखेगा, डिजाइन इश्यूज है वो हम इटरेट करे जा रहे हैं. आप बस अपना एस्ट्रोलॉजी करो और प्यार से बात करो. दैट इज ऑल यू हैव टू डू. बात करो, उनको अच्छा प्रेडिक्शन दो, उनकी हेल्प. यू हैव टू क्रिएट वैल्यू फॉर देम. प्यार से बात करने का मतलब था उसमें. यू हैव टू क्रिएट दैट कि वो आपके पास वापस बात आए, तो वो वैल्यू क्रिएट करो बस. दैट्स ऑल यू हैव टू डू. और रात को अगर तुम रात को 2 बजे उठ गए, मन नहीं लग रहा, साला ऑन कर लो बटन, यू विल स्टार्ट गेटिंग वर्क. We have created that kind of a business for you that it works 24/7. You don't have to sit anywhere, and we don't tell them कि यार इतने बजे से इतने बजे तक काम करो, ये तुम्हारी जॉब है, इतने घंटे मिनिमम करना है. We have kept no check. There is no condition. No condition at all. तुम करना है करो, नहीं ना करो. अब हमें पता है we have created that value for you that you are earning to that extent. Why would you mark yourself offline? Why would you do that? फालतू की बातें करी नहीं ना उनके साथ. इतना करो, इतना ऐसे करो, वैसे करो. कुछ मत करो यार, मत करो. कैसे नहीं करोगे? The experience is not just addictive for the customer, it's also addictive for the astrologer. Yeah. They are earning for every minute. इतने मिनट काम करके दे लो, वो हटते नहीं है, वो भी करते रहते. अच्छा, अब थोड़ा जो है ना मार्केटिंग पे चलते हैं. There is this quote of yours. I don't know if again, I think everybody should see all your interviews. पुनीत गुप्ता एस्ट्रो टॉक लिखो, most underrated interviews मिलेंगे. You said marketing is a love story. मैंने वीडियो पॉज करके 2 मिनट सोचा था कि ये बोल क्या दिया है. सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई डू यू फील मार्केटिंग इज अ लव स्टोरी? That's the end of this part. In part 2, Puneet talks about why marketing is a love story. He also talks about his Quora post, which is the most viewed Quora post from India. And he gives so many other stories. So, wait till then and please like the video, follow the channel and share this video with others. See you.